Okay. So the first question is strings का जो images है उसमें I'm referring to the question number 1, solve problems on string manipulation. See, the questions are from Java textbook of class 10th, but yes, we can of course solve those questions using our Python language and the concepts that we have learned. ठीक है? So we'll start. The question number 1, program 1 says input is if the user gives the input as BlueJ, just a minute. BlueJ is an IDE for running Java for beginners, just like PyCharm helps you run Python. Similarly, BlueJ helps you run Java. So it's a IDE. Okay. So your output should be this. Okay. तो ये तो बहुत सिंपल है. I'll just give you a draft. I hope कि इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को. What will you will do? एक string ले लेंगे s. You will take one string s is equals to BlueJ. Then you can do for I in s और हर लाइन पे तुम्हें प्रिंट करना है, राइट? सो यू विल प्रिंट I because each print will print each character. I will get character one by one from this iterable object, string object s. So one by one, first time I will be b will be printed, line will be changed, next time I will become l. So in this way you will do. Alternately you can do this way. BlueJ for I in len s print si. Either of the approach you can use. Okay. So of course in the question I have just taken an example of BlueJ. This input string can be anything, so you will not take the hard coded value, rather you will use something like yes, I think it should be for I in range and okay, yes, correct, thank you so much. okay. Range of len s. Okay. So और of course थोड़ा सा यहाँ पे you can write this column. Okay, and of course यहाँ पे you will take the generic input. तो input एक करके string लोगे, तो you should not take hard coded value. So whatever string you will take, each character will be printed on separate line. So this was pretty straightforward. इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था. And yes, I hope my voice is audible to all clearly, है ना? किसी को I think you are not having problem in listening to me. Okay. ठीक है, चलो. Fine. So we'll move to the next question. Second question says, write a program to accept a string and count and display the number of vowels in the string. So let's say that means if you are inputting a string, okay, if you are
if your input is right, आर्मी पब्लिक स्कूल, इसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल दिया है, okay, so your output should be the number of vowels is equals to, how many vowels are there? 1 2 3 4 5, I think 5 ही है ना, 5 vowels, ठीक है. सो इस तरह का तुम्हारा होना चाहिए. सो इसके भी दो अप्रोच हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है. व्हाट यू विल डू, एस इज इक्वल्स टू ये ले लोगे, या इन जनरल यू टेक इनपुट, ओके, एंड देन यू विल राइट फॉर आई इन एस, okay, and then one by one you will be checking if I is equals to double equals to vowels, so A, and of course on the top you will take C is equals to 0 counter, because you have to count the number of vowels. So whenever I happens to be either A or I is you can take a list of vowels, right? You can take a list of vowels and compare. वो भी आएंगे ना, I'll come to that gradually. Yes, good that you figured it out. A, E, I is equals to, यहाँ पे सावधान रहना, this is I of this variable identifier name and this is I in quotes, तो string है वो, don't confuse. A, E, I, O, I is equals to I, O, और इस तरह करके बहुत बड़ा बनेगा. U, that is not enough, अभी ये भी sufficient नहीं है. You will have to check capitals also, क्योंकि string में user small capital कुछ भी दे सकता है, so you will have to check everything. A, और इस तरह करके बढ़ते जाओगे, I is equals to capital U. Fine. अगर ये ऐसा मिलेगा, then what you will do is C is equals to C plus 1. So you will iterate one by one, you will extract all the characters from this string, and every character you are going to match with either small vowels letters or the capital vowel letters, and if there happens to be a match, that means you just found a vowel, and you will increase the counter by 1, and after iterating through all, or after scanning all the symbols characters one by one of the string, then outside you can print C, which is the number of vowels, और थोड़ा उसको डेकोरेट करके लिख लेना, the number of vowels, and of course this gap should not be there, वो तो लिखने में आ गया. Fine. So this you will see कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है. This line, this statement has become quite lengthy, this expression or the condition along with if. So we can reduce it in a good way, to a good extent, by using the membership operator in. देखो वो कैसे करेंगे. और second approach is considering कि you have taken s and counter variables and all, ठीक है. उसके बाद ऊपर में, अच्छा चलो मैं लिख ही देता हूँ, s is equals to input C is equals to 0, and then what you will do is vowels, list of vowels you will take A, E, I think ये सब मैंने लास्ट ईयर किया होगा, पता नहीं, याद नहीं है होगा तुम लोग. O, U, कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल O एंड कैपिटल U. ठीक है, लिस्ट ऑफ वॉवेल्स डाल दिया. उसके बाद फॉर I in S, तो वन बाय वन आई विल बी ये. अब मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करेंगे इन से. व्हाट डज मेंबरशिप ऑपरेटर डू? इट चेक्स whether a certain character
or a certain character or certain element is present in the list of list provided to it. तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, if I in V, that means if string I, of course यहाँ पे हर string एक character का है, तो if this string I happens to be a member of V, ठीक है, happens to be one of the members in the list V, then the result will be true. ठीक है, तो यहाँ पे अरे sorry I went into Java. ठीक है, if this means if I happens to be a member of list V, then true will be returned, capital T वाला. Okay, so in this case what you will do is C is equals to C plus 1. So see, ये एक बहुत बड़ा लाइन लिखना थोड़ा सा बच गया हमारा, क्योंकि एक लिस्ट वी डिफाइंड कॉमा से सेपरेटेड वॉवेल्स का, एंड देन वी चेक्ड ईच टाइम वी गॉट वन लेटर फ्रॉम द स्ट्रिंग इन आई, फ्रॉम द स्ट्रिंग एस इन आई, we matched whether that I belongs to V or not, or is present as one of the members in the list V or not. So अगर ये जब जब कैरेक्टर, ये I जोड़ी नहीं, ये कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग भी हो सकता है. So if this I, in this case because we have to check I is giving is containing character, so we'll check कि whether this character is present in the list of characters or single word strings, single letter strings. So if that is true, that means you just this is nothing but a vowel, so you will increase the counter for vowel, and at the end you will print C for के बाहर. ये अप्रोच समझ में आया या नहीं? टेक 10 seconds, मैं 15 seconds rather, और ज़रा बताओ. I'll just have some water and come. ओके, तो ज़रा बताइए मुझे, लेट मी नो. ओके, गॉट इट. अच्छा, सिर्फ क्या बोल रहे थे वो पलक, सिर्फ प्रिंट आई से ब्लू नीचे चला जाएंगे. हाँ, अरे पलक, ये प्रिंट तो क्या करता है ना, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वॉट एवर इज योर प्रिंटिंग, उसके बाद लाइन चेंज करेगा ना. क्या कोई डाउट पूछा था ऊपर? क्या नहीं? व्हाट वाज योर डाउट पलक हियर? क्योंकि देखो, ईच टाइम आई इज गेटिंग वन कैरेक्टर फ्रॉम ब्लू, तो बी आएगा पहली बार में, वो प्रिंट करेगा, और बिकॉज डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ प्रिंट इज दैट इट गोज टू द नेक्स्ट लाइन. ठीक है, एंड इज इक्वल टू बैकस्लैश एन होता है बाय डिफॉल्ट, तो हर कैरेक्टर तो नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट होगा ना. ओके, ठीक है. चलो, सबको समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is, write a program to string accept a string in lower case and replace e with star in the given string. तो e को star से replace करना है given string में. ओके, जहां जहां e मिलेगा, let's say question number 3. So you are writing, let's say s is input is equals to, बुक में जो दिया हुआ है वही ले लेते हैं. Let's say your input is computer science.
So your output should be, so the condition is given, I think the question that every input should be in lower case. ठीक है, मतलब इनपुट को जो स्ट्रिंग है लोअर केस में ही लेना है. सो दैट ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर. वो कैसे करेंगे देखते हैं. ओके, सो आउटपुट शुड बी COMPUT R स्पेस SCI N C एस्ट्रिक, ऐसा आउटपुट आना चाहिए. तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है ये. अच्छा, इसमें क्या करेंगे, विल टेक वन. इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है, S इज इक्वल्स टू एक इनपुट लेंगे. नाउ वी हैव टू इंश्योर दैट द इनपुट इज इन लोअर केस. व्हाट इफ कि अगर यूजर थोड़ा सा बदमाश निकला एंड जस्ट वांटेड टू प्ले अराउंड विथ यू, तो उसने इनपुट में कैपिटल भी डाल दिया, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा बिकॉज द क्वेश्चन मेंशन्स इन लोअर केस. सो व्हाट कैन बी डन? S not lower. हाँ, S डॉट, S डॉट लोअर ले लेंगे. यस करेक्ट. तो हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, S इज इक्वल्स टू S डॉट लोअर. इज लोअर मत लिख देना, वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा लोअर है या नहीं है. ठीक है. सो दिस विल इंश्योर दैट इवन इफ द कैरेक्टर्स वर नॉट इन द अपर लोअर केस, दे विल बी कन्वर्टेड टू लोअर केस. उसके बाद तो फिर सिंपल है. एक और वेरिएबल तुम्हें लेना पड़ेगा, लेट्स से एम्प्टी स्ट्रिंग y फॉर I in S if. So we can use replace also, right? हाँ करेक्ट, रिप्लेस भी यूज कर सकते हैं. पर देखो रिप्लेस इज अ वेरी गुड थिंग, वो एक लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. बट व्हेन द क्वेश्चन इज आस्किंग समथिंग, कुछ काम करने का, तो बोर्ड एग्जाम में कोशिश करना, डोंट यूज बिल्ट इन फंक्शंस फॉर और बिल्ट इन मेथड्स और फंक्शंस फॉर अचीविंग द प्राइमरी गोल. ठीक है, तब तो तुम्हारा स्किल टेस्ट नहीं हुआ ना. हाँ, कोई दूसरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यू मे यूज अदर बिल्ट इन फंक्शंस, बट द प्राइमरी गोल शुड नॉट बी असेस्ड यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस. मतलब कि वो अचीव्ड यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस. ठीक है, तो नहीं तो तुम्हारा स्किल टेस्ट नहीं होगा. वो तब करना चाहिए जब कोई यू डोंट सी एनी ऑप्शन, तुम्हें कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है, तो तब फिर लगा दो. ठीक है, बट लेकिन हमारा प्राइमरी एम क्या है, रिप्लेस करना. तो रिप्लेस के लिए वी विल नॉट यूज द बिल्ट इन फंक्शन, रादर विल ट्राई टू क्रिएट अ रिप्लेस फंक्शन ऑफ आवर ओन, a replace functionality of our own. Though replace will work perfectly fine. So हमने lower में convert कर लिया, and then if I is double equals to E, उस केस में क्या करेंगे, X is equals to X plus स्टार. क्योंकि अगर E मिल रहा है तो हमें जो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स फॉर्म करके न्यू वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, उसमें यू पुट स्टार. अदरवाइज फॉर एनी अदर थिंग x विल इक्वल्स टू x प्लस आई. ये प्रोग्राम देखो, मतलब कि अगर स्टार E मिला तो स्टार डाल देंगे और वर्ड को फॉर्म जो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली वन बाय वन यूजिंग कॉन्कैटिनेशन, उसमें स्टार डाल देंगे. अगर एनी अदर लेटर मिला तो यू विल सिंपली ऐड दैट लेटर. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम C विल कम, X इज एम्प्टी इनिशियली. ओके, तो फर्स्ट टाइम C विल कम. कंप्यूटर साइंस अगर डाल दिए, मान लो सिर्फ कंप्यूटर डाले हो तो फर्स्ट टाइम X विल बिकम, अंदर में आके दैट इज I इज नॉट मैचिंग E, तो I बिकॉज I इज C, तो X विल बिकम X व्हाट इज X प्लस I, ये वाला में जाएगा. So what is X? Empty string plus what is I? C. So this will become C. Next time I हो जाएगा O, तो इसी तरह तुम्हारा X will become, फिर else में आएगा because I is not E, तो X will become empty string plus
और नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग, लास्ट वैल्यू ऑफ एक्स सी प्लस ओ, इस तरह करके चलते जाएगा, जहाँ पे ई मिलेगा वहाँ पे बस वो हो जाएगा. जस्ट गिव मी मिनट. हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून सर, मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ, आई एम टेकिंग क्लास. हाँ ठीक है, फाइन. इस तरह करके इफ़ यू आर एज यू आर गोइंग फॉरवर्ड, तो जहाँ पे तुम्हारा इस तरह करके ये सी ओ बना, अगले बार में सी ओ एम बन जाएगा, सी ओ एम पी, सी ओ एम पी यू, सी ओ एम पी यू टी, और फिर जब ई आएगा तो इट विल मैच दिस, तो उसमें हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई, कंसिडरिंग ये होते आ रहा है, एंड x का वैल्यू उससे पहले स्टेप में कहाँ तक आएगा, एम पी यू टी प्लस ई, ई नहीं स्टार, ई की जगह में जब ई आ रहा है तो उसमें स्टार ऐड करना है, तो फिर देखोगे सी ओ एम पी यू टी स्टार बन जाएगा, और नेक्स्ट बार में फिर ई जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ऐड होते जाएगा, जहाँ पे ई मिलेगा केवल वहाँ पे यू विल गेट स्टार. दिस कंसेप्ट, दिस प्रोग्राम, इज इट क्लियर? टेक 10 सेकेंड्स, उसके बाद मुझे बताओ. ओके गुड. विष्णु प्रिया, अखिला, अभिषेक, प्रियंका, सबको समझ में आ गया. ओके आज कौन नहीं है? सम ऑफ यू इज मिसिंग राइट. शशांक तो वो तो नहीं रहता है. सौरभ इज हियर. 9, अच्छा अजय भी नहीं कर. ठीक है, सब लोग समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Write a program to accept a string and change the case of each letter of the string. Display the new string. मतलब क्या? टॉगल केस जानते हो ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में टॉगल केस के पीछे यही कोड होता है जो बटन क्लिक करते हो तो व्हाट इज टॉगल केस? लास्ट ईयर भी हमने किया है ये प्रोग्राम. सो इसमें बेसिकली यू हैव बीन आस्क्ड टू टॉगल द केस. सो लेट्स से योर इनपुट इज, लेट्स से मेरा नाम ही है पी आई कैपिटल वाई कैपिटल यू स्मॉल एस, ठीक है, कैपिटल एच. सो इसका आउटपुट क्या होगा? हर कैरेक्टर का केस जो है उसको चेंज कर देना है. सो आउटपुट शुड बी ठीक है. सो अंडरस्टूड, मतलब कि यू हैव टू टॉगल द केस, यू हैव टू मतलब कि जो केस है उसको रिवर्स कर देना है फॉर ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग. सो इसमें हम लोग क्या करेंगे ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आई हैव डिस्कस्ड. तुम लोग ये प्रोग्राम कल सॉल्व करोगे और मैं फिर सॉल्यूशन भेजूंगा, उससे मैच करोगे. आई जस्ट गिव यू एन आइडिया हाउ टू प्रोसीड. ठीक है, इसके लिए आई विल रेफर कि you will create a function def change case where you will be sending the string as कुछ प्रोसेसिंग करोगे, ठीक है, और यहाँ पे you will write s is equals to मेन स्कोप में input function and then input function for accepting the string as the input. Then what you will do is you will print, and this function will of course return let's say convert करके तुमने x में डाल दिया है चेंज को, ठीक है, print you will call this change case with s. It will return the converted string which was stored in x in this function definition और वहाँ से चेंज हो जाएगा. जहाँ भी पॉसिबल हो फंक्शन बनाने की कोशिश करो. सो उस चेंज फंक्शन में क्या क्या करना है इस लाइन में मैं जस्ट तुम्हें आइडिया दूंगा,
ठीक है, फॉर ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग s pass to it, okay, रिवर्स द केस. रिवर्स मतलब क्या, चेंज कर देना, जो है उसका उल्टा. रिवर्स द केस यूजिंग यूनिकोड लॉजिक और ASCII लॉजिक. कर लोगे? इट्स वेरी इजी. ठीक है, तो तुम्हें चेंज चेक करना है कि इफ द केस इफ आई फॉर आई इन एस में इफ आई विल बी इफ द ORD ऑफ आई विल बी इन द रेंज 65 to 90, दैट मीन्स वो स्मॉल में होगा. ठीक है, अगर स्मॉल में होगा तो फिर उसे उस ORD में वी विल कैपिटल में होगा if it is between 65 to 90 including both. So what you will do is you will for that I you will increase by 32 ORD और उसको फिर कैर में बदल के एक empty string में string form करते जाओगे. और अगर if the I happens to be between 97 to 122 both including, then in that case you will decrease ORD of I में से तुम 32 डिक्रीज करोगे और उसको कैर में कन्वर्ट करके यू विल ऐड टू द एम्प्टी स्ट्रिंग जिसमें स्ट्रिंग फॉर्म कर रहे हो. सो लेट मी नो कि ये लॉजिक जो तुम लोग का यूनिकोड मैनिपुलेशन वाला है वो तुम्हें समझ में आया या नहीं. अगर बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर आता है या सिंबल आता है तो दैट शुड नॉट बी चेंज्ड. कल हम लोग ऑफकोर्स सोल्यूशन देखेंगे इसका, बट दिस लॉजिक इज इट क्लियर टू सॉरी this logic, is it clear to all? Okay. No sir, प्रियंका. ओके, देखो प्रियंका मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रशांत तुम्हें ही बता रहा हूँ. चलो मैं लिख देता हूँ. चेंज केस कैसे बनाएंगे, डेफ चेंज केस एस. ठीक है, you will take an empty string x, will write for I in s if हम लोग कैसे समझेंगे I अपर केस में है या लोअर केस में है, उसका यूनिकोड या ASCII वैल्यू चेक करके. सो वी विल सी I इज अ कैरेक्टर, तो वी विल सी इफ ORD ऑफ I is greater than equal to 65 or ORD, that is the Unicode value of character I from the string S, is less than equals to 90. इसका मतलब क्या होगा? This will mean that character is in lower case, sorry upper case. Correct. उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टू ऑब्टेन द कैरेक्टर corresponding कैरेक्टर इन अपर केस, एंड वी नो दैट कि लोअर केस और अपर केस के corresponding कैरेक्टर्स के बीच का डिफरेंस 32 का होता है. तो लोअर केस को अपर केस में बदलना है तो प्लस अपर केस को लोअर केस में बदलना है तो यू विल ऐड 32 टू द ASCII वैल्यू. सो अपर केस का कैरेक्टर क्या होगा, ORD of I will give you the ASCII value of this character or the Unicode value of this character. इसमें 32 जोड़ेंगे तो ये अपर उसके अपर केस कैरेक्टर का यूनिकोड वैल्यू आ जाएगा. और फिर जो ये इंटीजर और ये इंटीजर का जो सम है वो अपर केस वाला होगा I का यूनिकोड, उसको कैर में बदल देंगे. ठीक है, लेट्स से जस्ट अ मिनट. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज x इज इक्वल्स टू x प्लस दिस. ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग में फिर 1 by 1 वर्ड फॉर्म करना है ना हमें, करेक्ट करके उसे. सो पहली बार अगर वो लोअर केस होगा, अपर केस होगा तो वो लोअर केस में कन्वर्ट होके ऑफ कोर्स क्या
अपर केस में ASCII कोड में उसको कन्वर्ट करके उसको कैरेक्टर ऑब्टेन कर लेंगे, तो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर का अपर केस आ जाएगा, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड कर लेंगे। नहीं तो else if elif ORD of I is less than equals to greater than equals to 97। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान देना, एंड होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज मैंडेटरी है ना। एंड ORD of I is less than equals to 122। that means I is in लोअर केस, तभी उसका ASCII वैल्यू उस 197 से 122 के बीच में होगा उस कैरेक्टर का। याद रखना ORD बस सिंगल कैरेक्टर लेता है, एंड बिकॉज स्ट्रिंग में से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आ रहा है, देयरफॉर दिस विल वर्क। अगर बीच में स्ट्रिंग डाल दोगे तो काम नहीं करेगा। लोअर केस, देन दैट मीन्स द कैरेक्टर हैज टू बी कन्वर्टेड टू अपर केस। अपर केस उस करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर का कैसे मिलेगा, उसके ORD वैल्यू को में से 32 माइनस करेंगे तब उसका करस्पॉन्डिंग अपर केस मिल जाएगा। उसको कैरेक्टर में चेंज करेंगे तो वो अपर केस ही मिल जाएगा एग्जैक्टली। उसका यूनिकोड से अपर केस आ गया, कैरेक्टर आ गया उसका, एंड दैट हैज टू बी एडेड इन x, और वो नया x बन जाएगा। तो इस तरह करके जो स्ट्रिंग जनरेट होगा तो उसमें ऐसे करेंगे। नाउ इट मे बी पॉसिबल कि वो कैरेक्टर अल्फाबेट हो ही ना, neither in upper case nor in lower case. That means for all other things, if the character happens to be a numeric value or a special symbol, so for that case what you will do, कुछ नहीं करना है, उसमें डायरेक्ट x इक्वल्स टू x प्लस आई हो जाएगा, एज इट इज ऐड कर देना है स्ट्रिंग में। तो इस तरह करके 1 by 1 जो स्ट्रिंग x फॉर्म होगा, बिल्ड होगा, that will toggle the cases if the character is in either in lower case or upper case, and if it is neither then it will simply be added as it is। और फिर बाहर में इसको तुम रिटर्न x कर दोगे, which will be caught when, जब ये s पास होगा यहाँ पे और ये x रिटर्न होगा, ये प्रिंट के अंदर में वो स्ट्रिंग कैच हो जाएगा, एंड दैट स्ट्रिंग will be replaced by will replace this function call, और वो स्ट्रिंग को फिर ये प्रिंट कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ये कंसेप्ट देखो प्रियंका एंड प्रशांत, ये समझ में आया? ओके ओके, ठीक है, चलो गुड। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आसान क्वेश्चन है। Write a program to accept a string and display part 1 the number of lowercase characters, part 2, अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 द नंबर ऑफ, मतलब कि इनपुट तुम्हारा कोई भी स्ट्रिंग होगा, मान लो इनपुट इज तुम्हारा हेलो, हेलो देयर, 1 2 3 @ मान लो ये तुम्हारा इनपुट है स्ट्रिंग। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट में तुम्हारा पार्ट, मतलब इतने ये सारे आउटपुट आने चाहिए तुम्हारे। नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स इज इक्वल्स टू, वो आंसर दिखाएगा। नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर्स, वो आंसर दिखेगा, प्रिंट होगा। नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैर्स, वो आंसर भी आना चाहिए। एंड नंबर ऑफ डिजिट्स, वो भी पता होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा,
नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स 1 2 3 4, ठीक है, 5 1 या 1 2 3 4 5 5 है। नंबर ऑफ अपर केस कितना है? 1 2 3 4 5, वो भी 5 है। नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं? 1, स्पेस सबको भी काउंट करना है, 1 2 3 एंड ऑफ कोर्स एट द रेट 4, ठीक है। एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 2 एंड 3 डिजिट्स आर देयर, ठीक है। तो इस तरह करके आउटपुट आना चाहिए तुम्हारा। तो आई थिंक इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वी विल यूज द सेम अप्रोच, है ना। तो उसमें कैसे करेंगे? सेम चीज है। इफ ओ आर, अच्छा मान लो एस तुमने इनपुट ले रखा है, सो एस इज इक्वल्स टू इनपुट फॉर आई इन एस, ठीक है। फिर वही लिखेंगे इफ ओ आर डी ऑफ आई, ये जो ऊपर में लिखा था ये दोनों लाइन, ठीक है। तो वी विल राइट देम एज इट इज, ठीक है। देन एक और चीज लिखना पड़ेगा, थर्ड एलिफ विल ऑल्सो कम। थर्ड एलिफ में क्या करेंगे? इन लोअर एंड अपर केस, मान लो यहाँ पे देख लिया, लोअर केस एंड अपर केस टेकन केयर। मान लो पहला इफ एंड एलिफ में, थर्ड एलिफ में। और याद रखना सबके लिए अलग अलग काउंटर वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। लोअर केस के लिए तुम LC, अपर केस के लिए UC, स्पेशल कैरेक्टर के लिए SC एंड नंबर्स के लिए n इज इक्वल टू 0 करके ऊपर में एक वेरिएबल बना लेना, 4 वेरिएबल बना लेना, 4 वेरिएबल्स। एंड देन एलिफ, इस केस में अगर लोअर केस मिलेगा तो LC + 1 होना चाहिए, अपर केस मिलेगा तो अपर केस इक्वल टू UC + 1 होना चाहिए। एलिफ, अब ये नंबर में क्या होगा? न्यूमरिक वैल्यूज विल बी, उसकी ASCII डिजिट्स के ASCII कोड क्या होते हैं? ORD ऑफ I इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कहाँ से शुरू होता है? 48, 0 इज 48 एंड ORD of I is less than क्या? 57 is the last decimal digit in Unicode set। उस केस में क्या हो जाएगा? n is equals to n + 1, ठीक है। मतलब नंबर तुम्हें मिला है, एक डिजिट मिला है। एल्स अगर लोअर केस में भी नहीं है, अपर केस में भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, तो देन ऑफ कोर्स इट इज स्पेशल कैरेक्टर। तो देयर विल बी SC इज इक्वल्स टू SC + 1, ठीक है। हैव अ लुक एट दिस प्रोग्राम which calculates the number of lower case, upper case number digits and special characters in the given string and displays them separately। print तो कर ही लोगे लूप के बाहर separately, print LC, print UC, print N and print SC। just have a look for 10-15 seconds and let me know is it clear or not। Sir, tell me। in this program also, it's if we use the built-in string functions, and then also you can do this approach, yes right? yes of course। तुम वो इस डिजिट, इस लोअर, इस अपर, वो सबसे भी ट्रू फॉल्स करवा के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ। सी मैंने जैसे लाइक आई हैड सेड कि दैट्स द रीज़न व्हाई आई डोंट डिस्कस द बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स अर्ली। वो तो पहले क्लास में भी कर सकते हैं, बिकॉज यू विल जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द बिहेवियर, पर वो उससे आदत खराब हो जाती है, ठीक है। ऑफ कोर्स व्हेन यू गेट यूज्ड टू द प्रोग्रामिंग यू शुड अवॉइड री इन्वेंटिंग द व्हील, मतलब खुद से नहीं बना के लिखना चाहिए। इन दैट केस यू शुड यूज बिल्ट इन मेथड, बट टू इनिशियली व्हेन इन द लर्निंग फेज you should try to write the codes for exact codes for that,
ठीक है, उससे तुम्हें पता रहेगा, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ता है, ठीक है. यस, सो यू आर 100% करेक्ट. तुम बिल्ट इन मेथड से ज़्यादा आसान होगा, एंड लेटर ऑन जब तुम अच्छे प्रोग्रामर्स बन जाओगे तो ये सब छोटे छोटे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. बट यू शुड नो कि हाउ द कोड वर्क्स, ठीक है. तो इन दैट केस इट इज़ ऑलवेज डिजायरेबल टू यूज़ बिल्ट इन मेथड, बट बिकॉज वी आर लर्निंग एंड एज पर द सिलेबस वो एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो इसलिए मैं ये जो उसका क्रूड अप्रोच है और यू कैन से द रॉ वे है वो मैं बता रहा हूँ. ऑफ कोर्स दैट इज़ मोर एफिशिएंट एंड दैट विल रिड्यूस द लाइन्स ऑफ कोड एंड प्रोग्राम भी अच्छा कहलाएगा. सो ऑफ कोर्स यू कैन डू विद दैट, ठीक है. ओके सर. सो मतलब कि आई होप अदर्स ऑल्सो अंडरस्टूड वो क्या बोल रहे थे. इसके जगह इज अपर, इज लोअर, इज अपर में ट्रू मिलेगा तो लोअर ये UC +1 करेंगे, इज लोअर में ट्रू मिलेगा तो LC +1 करेंगे, इज डिजिट में ट्रू मिलेगा तो N+1 करेंगे, एल्स में फिर SC = LC +1 कर लेंगे. दैट वाज व्हाट शी मेंट. ऑफ कोर्स दैट इज यस सिंपलर एंड मोर एफिशिएंट वे ऑफ सॉल्विंग, बट तुम्हें ये मेथड पता होना चाहिए ताकि यू कैन ईजिली डू. तो एग्ज़ाम में तुम्हें जो समझ में आए, जो पहले क्लिक करे वो कर देना, ठीक है. कोशिश करना इससे करने का. डाउट रहे कि किस पे मार्क्स मिलेगा तो दोनों सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 करके भी कर सकते हो, ठीक है. ओके, सो सर ये क्वेश्चन एक बार रिपीट करना प्लीज़. कौन सा, ये वाला? प्रशांत, क्वेश्चन था कि अगर तुम्हारा कैरेक्टर जो है, देखो जो एक स्ट्रिंग दिया है उसमें कितने लोअर केसेस हैं वो प्रिंट करना है, कितने अपर केसेस हैं वो प्रिंट करना है, कितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट करना है, एंड कितने डिजिट्स हैं वो प्रिंट करना है सेपरेटली. तो उसको हमने आस्की कोड के बेसिस पे चेक कर लो, या नहीं तो लाइक आई थिंक विष्णु प्रिया सजेस्टेड कि वो यू कैन यूज़ द बिल्ट इन फंक्शंस मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग्स रादर, जो कि हैं तुम्हारे इज लोअर, इज अपर, इज डिजिट, और फिर उसके बाद एल्स में तो खुद ब खुद निकल जाएगा ये. ओके, ठीक है. तो चलो ये अगर सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ें. जस्ट लेट मी नो. ओके, फाइन. Now we are going to the next question, question number 6. Write a program to accept a name and display the initials along with the surname. ठीक है, ये तुम लोगों को मैं आइडिया दूंगा, खुद से करना. ये तो एकदम हेल्प नहीं करूंगा. That means if your input is let's say input is given as, I'll take the example of the book, Mohandas Karamchand Gandhi, okay, then your output should be m dot space k dot first name and middle name should be displayed as it is, okay, and जो last name है वो तुम्हारा पूरा आएगा स्पेस देके. okay, so how will you do it? Any idea? किसी को? This is of course a string. काउंट स्पेसेस ऑफ कोर्स सॉर्ट ऑफ काउंट स्पेसेस क्या करेगा कि वो वर्ड तुम्हें सेपरेट कर देगा. फाइन, वैसे भी करोगे बिल्कुल वैसे हो जाएगा, उसमें कुछ और सोचना पड़ेगा. So we can separate the word, like separate the words, then take the. How will you separate the words? Split. Good. That is the easiest way. पर I want you to solve both the ways. जैसे सौरभ बोल रहा है कि अलग अलग वर्ड बना के पहले चेक करेंगे उस तरह से, और स्प्लिट यूज़ करके. अब तुम्हें स्प्लिट का यूजेस समझ में आएगा, कितना आसान कर देता है. I'll just give you an idea. So that was a very good attempt from Anand. तो ये S तुमने ले लिया इनपुट में. लेट से हमें पता है कि सारा नेम जो दे रहे हो वो तुम्हारा 3 फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों है. तो व्हाट यू विल डू इज S इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में वन लिस्ट यू टेक L, यू कैन राइट S डॉट स्प्लिट
we remember if we do not pass any argument in the split, then the default separator is assumed to be blank space. तो जहाँ जहाँ blank space मिलेगा उसको separate करके वो list बना देगा. In case your input is मोहनदास करमचंद गांधी, तो list will be जहाँ जहाँ space है वहाँ पे demarcation होके that will form the separate elements or items of the list. L list labeled as L. बस करमचंद गांधी. ठीक है. अब क्या करेंगे हम लोग? We know the length of the list is 3. Okay, so what we will do is we will take one string, empty string, or we'll do for I in range. कितना लेंथ है इसका? 3 है. अगर हमें पता है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम इनपुट है तो व्हाट वी विल डू इज जीरो से 3 जाएंगे, 0 से 2 जाएंगे. आई विल टेल यू वाई 2. वी विल डू x इज इक्वल्स टू x प्लस, पहला बार में क्या आएगा? फर्स्ट नेम आ जाएगा लिस्ट का, मोहनदास. तो हमें फर्स्ट हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड आ जाएगा ऑफ द स्ट्रिंग. तो उसका पास फर्स्ट लेटर लेना है. सो व्हाट आई विल डू इज दैट इंटायर वर्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय s of i. S of i will give मोहनदास, पर हमें m चाहिए. तो s of i का जो स्ट्रिंग बन रहा है उसका 0th कैरेक्टर पे चाहिए हमें, इंडेक्स वाला कैरेक्टर. सो वी विल राइट s of i of 0, मतलब s of i का 0 of s of i. तो इंडेक्स एट 0th पोजीशन ऑफ s of i. तो s of i इज मोहनदास एंड उसका 0th पोजीशन पे आ जाएगा विल बी m. और उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? डॉट डालना है. डॉट एंड देन स्पेस. ओके, ऑफ कोर्स ये कैरेक्टर नहीं होता है, ये मैं बस ब्लैंक स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. फाइन. तो रिमेंबर लास्ट नेम मुझे पूरा चाहिए. सो इसीलिए आई हैव नॉट गॉन अप टू, ये कहाँ तक जाएगा? इंडेक्स नंबर 0 and 1 तक. 2 इज एक्सक्लूडिंग, तो ये और यही बार निकलेगा. दिस वोंट बी ये. व्हाट आई विल डू, बिकॉज फर्स्ट 2 लेटर, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम को तुमने x में ऐड कर दिया है, तो ये तुम्हें कुछ ऐसा बना के दे देगा जब लूप के बाहर आएगा. तो s विल बी m डॉट स्पेस k डॉट स्पेस. ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू इज x इज इक्वल्स टू x प्लस, क्या करेंगे? s का लास्ट कैरेक्टर क्या है? लास्ट इंडेक्स कौन सा है? 0, 1 and 2, s2. तो दिस विल फाइनली फॉर्म द स्ट्रिंग. x क्या था लास्ट लूप के अंदर में, लास्ट इटरेशन तक? m डॉट स्पेस k डॉट स्पेस, और ये दिस विल ऐड प्लस 0, 1 and 2. 0, 1 and 2. 2 में क्या होगा? उसका टाइटल है गांधी. सो दिस विल गिव यू स्पेस k डॉट स्पेस. ये समझ में आया? और इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देंगे. लेट मी नो ये कंसेप्ट जो स्प्लिट करके इतने आसानी से कर लिया. सौरभ वो ट्राई करोगे? सब लोग ट्राई करेंगे वो नॉर्मल अप्रोच भी, वर्ड से सेपरेट करके कैसे होगा? जस्ट यूज योर ब्रेन्स. पर वो देखोगे बहुत लंबा हो जाएगा. स्प्लिट हेल्प्स अस अलॉट इन स्ट्रिंग्स. तुरंत वर्ड को तोड़ के दे देता है तुम्हें. ओके, सो पलक को तो एक बार और समझना है. ओके,
देखो पलक क्या कर रहे हैं, लॉजिक देखो। पहले जब हम स्प्लिट करेंगे किसी भी सेंटेंस को, तो बेस्ड ऑन कहाँ कहाँ उसे स्पेस मिल रहा है, ब्लैंक स्पेस, दैट विल टोकनाइज द वर्ड इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो ये लिस्ट में जहाँ जहाँ स्पेस मिला है उसे ब्रेक करोगे वहाँ वहाँ से, तो तुम्हें लिस्ट जो बनेगा, पहला मोहनदास, सेकंड करमचंद एंड लास्ट गांधी। उसके बाद हम लोग क्या किए, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट निकालेंगे। उसके लिए हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, 0 से 2 जाएंगे, 0 से 3 जाएंगे तो पहली बार में आई मोहनदास बनेगा, सेकेंड टाइम में करमचंद आएगा आई में, और थर्ड टाइम में गांधी आएगा। पर हमें थर्ड वाले को नहीं देखना है, हमें बस फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम को देखना है, मिडिल नेम को देखना है। सो व्हाट वी विल डू इज, इसीलिए हम लोग 0 से 2 जा रहे हैं, 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसको तो डायरेक्टली एज इट इज ऐड कर देना है। तो उसके केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जब पहला नेम आया मेरे पास मोहनदास आई में, तो आई इन द एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने उस नेम को नहीं ऐड किया, उस नेम को जो पहला पार्ट आया, फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट जो कि फर्स्ट नेम था, उस फर्स्ट नेम, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि ये मैंने क्या लिखा है, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम आई इज मोहनदास, तो लेट्स से मोहनदास नहीं है, फर्स्ट टाइम आई इज 0, इंडेक्स पोजीशन 0, तो आई विल राइट ए इज इक्वल्स टू एस ऑफ आई। तो ए में क्या चल जाएगा, पहली बार में एस ऑफ 0, एस ऑफ 0 इज मोहन, सॉरी नॉट ये मैंने गलत कर दिया था यहाँ पे, इट वोंट बी एस, इट विल बी एल, करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी एल हो जाएगा क्योंकि मैं एस देख रहा था, वो लिस्ट से निकालना है ना, मैं एल ऑफ 0, एल ऑफ आई, सॉरी एल ऑफ आई, करेक्ट, हाँ एल ऑफ आई आ जाएगा, तो दैट विल बी फर्स्ट वर्ड इसका पहली बार में आएगा। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट एक्स इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, पहली बार में मोहनदास है, स्ट्रिंग है, एंड दैट स्ट्रिंग इज ए, तो वी विल राइट नेक्स्ट लाइन में एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए लिखेंगे तो पूरा मोहनदास ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें ए नहीं चाहिए, हमें ए का 0th इंडेक्स वाला पोजीशन चाहिए, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या आउटपुट में चाहिए हमें, डॉट, उसके बाद क्या चाहिए, एक स्पेस आएगा, तो आई विल गिव 1 ब्लैंक स्पेस, फिर नेक्स्ट टाइम वापस जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम दिस विल रेंज विल थ्रो 1 इन आई, ठीक है, तो ए ऑफ नेक्स्ट टाइम में एल ऑफ 1 विल बी मोहनदास, नहीं वो क्या बन जाएगा, करमचंद, ठीक है, ए। नाउ आई नेक्स्ट टाइम में अब तुम उसमें x प्लस करोगे, तो व्हाट इज x, पहली बार में x क्या बन गया था, फर्स्ट टाइम में m डॉट स्पेस हो गया था, अब वो m डॉट स्पेस में प्लस होगा क्या, a नहीं, करेंट वैल्यू ऑफ a इज करमचंद, तो a का 0th इंडेक्स क्या है उस स्ट्रिंग का, k, तो फिर क्या प्लस होगा, k प्लस डॉट प्लस स्पेस, so now x will become m dot space k dot space, ऐसा। now because we are not including the last in the index, क्योंकि 2 तक जाएगा तो 0 से 1 ही रन करेगा, this is excluding, so it will come out, and I know कि 3 लेटर नेम ही है, ठीक है, हाँ मतलब 3 लेटर नहीं, 3 एलिमेंट लिस्ट ही है, सो 2 ही तक जाएंगे, एंड थर्ड वन इज द टाइटल, तो टाइटल को तो एज इट इज ऐड कर देना है, तो देयरफॉर जब लूप के बाहर निकलेगा तो आई विल डू x इज इक्वल्स टू x प्लस इंटायर द होल एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विच विल बी टाइटल इटसेल्फ, तो x प्लस l का 2 क्या है, और x क्या था, लास्ट x था m dot space k dot space and last was गांधी। एक्चुअली ऐसा होगा, स्पेस प्लस
L of 2 will give you Gandhi, and which after concatenation you will get M dot space K dot space Gandhi, which is your desired output. ओके पलक ये चीज़ बताओ कि ये चीज़ समझ में आया है या नहीं आया है? ओके गुड. तो चलो एक चीज़ और, अब इसमें आई विल स्टॉप हियर, बस एक छोटा सा चीज़ बोल देता हूँ, इसके आगे के क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे. जब तक ये पूरा खत्म नहीं होगा आई वोंट प्रोग्रेस ऑन टू द बिल्ट इन फंक्शंस. तो इसको तुम्हें थोड़ा मास्टरी करना है. ओके नाउ टेल मी वन मोर थिंग कि लेट्स, तुम लोग इसको तो बनाओगे ही, इसके साथ साथ इसका एक और वेरिएंट बनाओगे. हियर आई हैव सपोज्ड कि ओनली 3 words are there in the name. What if the name is having more than 3 words? ठीक है, मान लो कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम तो है ही, उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े नेम होते हैं. ठीक है, तो उस केस में ये प्रोग्राम कैसे हैंडल करेगा? ठीक है, तो मान लो कि आई विल टेक समथिंग, किसी का नाम ऐसा है ABC. ठीक है, ये पहला पार्ट है नेम का PQR. ठीक है, LMN, चलो LMN एंड XYZ. कंसिडरिंग कि जो लास्ट वाला वर्ड मिले वो मेरा टाइटल हो, और ये कुछ भी हो सकता है पहले के वर्ड्स, नॉट नेसेसरली कि 3 ही वर्ड है. तो इसका मुझे आउटपुट ऐसा आना चाहिए. यू डोंट नो कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन हिज नेम, बट यू आर श्योर कि लास्ट वन इज द टाइटल एंड मिनिमम ऑफ 3 वर्ड्स विल बी देयर. इसको मानते हुए तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए A डॉट P डॉट L डॉट XYZ. जैसे फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम सर्च करना, वो नाम डालना, तो आना चाहिए A डॉट P डॉट J डॉट A डॉट कलाम. ठीक है, तो ये वाला, इसको इस वेरिएशन में थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे ऊपर वाले प्रोग्राम को, you will be able to solve this problem. So we can run it in a loop and check if the element taken is the last or not. नहीं अनंत बताओ, बस एक ही चेंज करोगे तो आ जाएगा. चलो आंसर ही बता दे रहा हूँ. डोंट गो टिल 2 हियर. ठीक है, टिल व्हाट पोजीशन यू विल गो? यू विल गो टिल len minus 1 and here you will write x equals to L plus len of L. That will solve your problem. समझे? What I am saying is here you will not go only till 2 because you know कि there are only 3 names, so you are going till 2. ठीक है, 0 and 1 जा रहे हो, पर तुम्हें जब नहीं पता है कि कितने वर्ड होंगे तो स्प्लिट कर लो एंड एक्सक्लूडिंग लास्ट गो एक्सट्रैक्ट ऑल एलिमेंट्स 1 by 1 और उसको इस फॉर्म में, उस जो भी वर्ड मिलते जाए 1 by 1 करके उसका पहला डिजिट लेके डॉट और स्पेस ऐड करके बनाते जाओ. तो ये कहाँ तक जाओगे? len minus 1 तक जाओगे, ताकि len minus 2 तक वो चेक करे इंडेक्स पोजीशन तक. ठीक है, एंड यहाँ पे लास्ट में तुम सिंपली L इक्वल्स टू L ऑफ len ऑफ L minus 1 तक डाल दोगे यहाँ पे. ठीक है, दैट विल बी द लास्ट पोजीशन. तो लास्ट वर्ड तुमको मिल जाएगा. समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. ओके, सो एवरीबडी शुड ट्राई इट आउट. जिसको नहीं समझ में आया फिगर आउट करो, थोड़ा वीडियो को एक बार और देखना. ठीक है, चलो आई विल स्टॉप हियर. और आज पहला 6 क्वेश्चंस किए हैं, सबको ट्राई करो खुद से. नेक्स्ट कल कोशिश करेंगे 5-10 क्वेश्चन और करके इसको खत्म कर देने का. लॉजिक्स नहीं होगा तो वी मे एक्सटेंड 1 or 2 मोर क्लासेस ऑन स्ट्रिंग्स, क्योंकि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आ जाएगा तो फाइल हैंडलिंग खुद ब खुद तुम लोगों का अच्छा हो जाएगा. एंड फाइल हैंडलिंग इज गुड, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इज गुड. इसमें लिस्ट का भी कंसेप्ट तुम धीरे धीरे यूज कर लेते हो तो एवरीथिंग विल बिकम परफेक्ट. ठीक है, प्रोग्रामिंग का अच्छा कंट्रोल आ जाएगा. सो चलो विल रैप अप फॉर द डे. अब बट इन समबडीज नेम वी डोंट कीप द सेकेंड लेटर एज इनिशियल. ठीक है विष्णुप्रिया, तुम कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो, बट लेट्स से कि मैंने क्वेश्चन ऐसा फ्रेज कर दिया, ठीक है, कि जितने भी वर्ड हो लास्ट वर्ड को छोड़ के उसके नेम में सारे का डॉट इनिशियल लिख के लिखेंगे. आई अंडरस्टैंड कि जो तुम सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स पे जा रहे हो. She is actually answering the question by Prashant. अच्छा, शी इज आंसरिंग बट इन समबडीज नेम वी. अच्छा ओके सॉरी आई मिसअंडरस्टूड. सर इफ यू वांट, हाँ, बट इन समबडीज नेम वी डोंट कीप द सेकंड लेटर एज इनिशियल. ठीक है, जो भी है, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ
कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि कंसिडर कर लो कि वो मल्टी वर्ड नेम है, लास्ट वर्ड को एज इट इज रखना है, बाकी सारे वर्ड के इनिशियल्स को डॉट 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 करके लिख दोगे। हाँ, अगर पूरा नेम लिखना है तुम्हें तो नेम में इनिशियल्स नहीं आएगा ना, एक्चुअली शी इज आंसरिंग करेक्ट, ठीक है। तो इनिशियल नहीं होता है नेम में, वो तो इनिशियल लिख के ही नेम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यू विल राइट द नेम इन फुल एंड देन यू विल राइट दिस फॉर्म प्रशांत, ठीक है। चलो ठीक है, यू मे डिस्कनेक्ट, फाइन, कल हम लोग फिर मिलते हैं एंड आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। मैंने लास्ट क्लास का भी रिकॉर्डिंग नहीं दिया है, आई वॉज नॉट गुड वेल yesterday, so I'll upload today. I'll just stop the recording here.